Good morning, students. Welcome to your online class. And today also we will continue with the NPE 1986. And today we will start part 5 of NPE 1986, which was recommended by the committee. And in part 4th, we studied about the relaxation which have been given to SC category and ST category, and many more things were given to remove the fear which was uh, which were facing by the people, and they were like उनको ये नहीं मालूम था कि किस तरीके से हमें उनको मतलब उनको इक्वालिटी चाहिए और किस तरीके से वो पढ़ाई अपनी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. All these things were very in a kind of confusing situation. So all these things, all these challenges were faced by the committee, and they recommended many points through which we can remove all kinds of fear from the people, from their mind, so that they can feel the equality essence, and they can feel that yes, they are also the part of this nation only, and they are equally eligible for all kinds of education facilities. Right now we will start today's part 5th of the NPE 1986, which says about the early childhood care and education. In short form we say it ECCE, right? So it says that like that. It says that the national policy on children especially emphasizes investments in the development of young child, particularly children from sections of the population in which first generation learners predominates. यानी बेसिकली इनका ये कहने का मतलब है कि जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं हमारे देश के, जो यूथ हैं, उनके ऊपर भी हमें पूरी तरीके से मतलब एजुकेशन को पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी है. उनको जितनी भी उनकी नेशनल रिलेटेड उनके अधिकार हैं, उनको पूरा उन तक पहुंचाने की हमें ज़रूरत है. ठीक है. फिर उसके बाद ये कहते हैं रिकग्नाइजिंग द होलिस्टिक नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट लाइक न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड सोशल, मेंटल, फिजिकल, मॉरल, इमोशनल डेवलपमेंट. ECCE will receive high priority and suitably integrated with the integrated child development services programs. Whenever possible, daycare centers will be provided as a support service for universalization of primary education to enable girls engaged in taking care of siblings to attend school, and as support services for working women belonging to poorer sections. तो बेसिकली ये जो ECCE पॉलिसी बनी उसमें ये चीज़ रखी गई कि हम ऐसे बच्चों को भी कंट्रोल करेंगे, यानी ऐसे बच्चों को भी हम आगे लाएंगे जो किसी कारणवश अपना पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और प्लस ECCE के अंडर बच्चे का हर तरीके का डेवलपमेंट कवर होगा, यानी न्यूट्रिशन से लेके उसकी मेंटली स्थिति तक, उसकी फिज़िकल स्थिति तक, और प्लस साथ में जो वर्किंग वुमेन है पुअर सेक्शन की, उनकी भी केयर यहाँ पे होगी. और ऐसे बच्चों की भी केयर होगी जो जैसे मान लीजिए कि उनके छोटे भाई बहन हैं और वो किसी कारणवश स्कूल नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे कि वो बच्चे आके अपना डे केयर में अपने भाई बहनों को डाल दें, और वो जितनी देर पढ़ाई करें उतनी देर वो बच्चे वहाँ पर रहें. जैसे हमारे यहाँ अभी आज के मॉडर्न टाइम में कहा जाए तो क्रैच वगैरह होता है. ठीक है. तो ये सब यहाँ पे बात कही. और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि प्रोग्राम ECCE विल बी चाइल्ड ओरिएंटेड. ठीक है. ECCE जो प्रोग्राम होगा वो पूरा का पूरा चाइल्ड ओरिएंटेड होगा, यानी जो फोकस में रहेंगे वो कौन रहेंगे? बच्चे. ठीक है. Focused around play and the individual of the child. Formal methods and introduction of the 3 rupees will be discouraged at this stage. The local community will be fully involved in this program. तो बेसिकली यहाँ पे
जो देखिए, अब जब सरकार काम करेगी तो जब तक वो लोकल लोगों से मिलकर काम नहीं करेगी, उनकी परेशानियों को देखेगी नहीं, तब तक वो लोगों की समस्याओं को वो समझ नहीं सकती। तो यहाँ पर जो ECCE प्रोग्राम चला था, उसके तहत इन्होंने कहा कि हम लोगों से जुड़ेंगे, ठीक है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस से हम जुड़ेंगे, तब जाके हम उनकी मदद कर पाएंगे सही तौर पर, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि द फुल इंटीग्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन विल बी ब्रॉट अबाउट बोथ एज अ फीडर एंड अ स्ट्रेंथनिंग factor for primary education and for human resource development in general. In continuation of this stage, the school health program will be strengthened. तो धीरे धीरे इन्होंने ये कहा कि इस चाइल्ड प्रोग्राम के साथ साथ हम प्री प्राइमरी एजुकेशन पे भी ध्यान देंगे, और उसके बाद हम लोग स्कूल हेल्थ प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करवाएंगे, जिससे कि बच्चों के अंदर उनकी हेल्थ को लेकर एक जागरूकता फैले, साफ सफाई की क्या वैल्यू है वो बच्चे जान पाएँ, खान पान से क्या फ़र्क पड़ता है उनकी हेल्थ पर, ये सारी चीज़ें उनको जानकारी उनको प्राप्त करवाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कही गई है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या कह रहे हैं ये, द न्यू थ्रस्ट इन एलिमेंट्री एजुकेशन विल एम्फसिस 3 एस्पेक्ट्स। यहाँ पे जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वहाँ पे 3 चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया गया। पहला है यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, दूसरा है यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, यानी रिटेंशन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, और 14 साल तक के, यानी 14 साल तक की जो पढ़ाई है यहाँ पे वो किस तरीके की है, फ्री और कंपलसरी पढ़ाई है, इसलिए यहाँ पे कोई भी बच्चा 14 साल तक की एज तक कोई भी क्लास रुकेगी नहीं उसकी, वो कंटिन्यू रहेगी। फिर है उसके बाद अ सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू इनेबल ऑल चिल्ड्रन टू अचीव एसेंशियल लेवल्स ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ध्यान किस पे है, चाइल्ड पे है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, चाइल्ड अप्रोच कहा गया है या चाइल्ड ओरिएंटेड कहा गया है। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है एलिमेंट्री एजुकेशन पे जो फोकस किया जाएगा, वो पहला पॉइंट है आपका यूनिवर्सल एंड एनरोलमेंट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लेना और सभी के लिए शिक्षा को प्रदान करना। दूसरा क्या है, यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, यानी 14 साल तक के जो बच्चे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के तहत जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनकी शिक्षा को रोकना नहीं है, यानी कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, ठीक है। फिर सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, यानी जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो शिक्षा उनको दी जा रही है, उसकी जो क्वालिटी है उसमें दिन पे दिन उसमें इम्प्रूवमेंट करना। तो ये सब कुछ इनके 3 मेन काम थे एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि व्हाट इज चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। अ वार्म वेलकमिंग एंड इनकरेजिंग अप्रोच, ठीक है, इसको सबकी सहमति से ये अप्रोच लाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, इन विच ऑल कंसर्न्ड शेयर a solicitude for the needs of the child is the best motivation for the child to attend school and learn. A child-centered and activity-based process of learning should be adopted at the primary stage. First generation learners should be allowed to set their own pace and be given supplementary remedial instruction. As the child grows, the component of cognitive learning will be increased and skills organized through practice. The policy of non-detention at the primary stage will be retained, making evaluation as discreet as feasible. Corporal punishment will be firmly excluded from the educational system, and school timings as well as the vacation adjusted to the कन्वीनियंस ऑफ चिल्ड्रन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया कि पूरी शिक्षा को एक बच्चे के इर्द गिर्द रखा गया, यानी एक बच्चे के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को बनाने की कोशिश करी गई। यानी यहाँ पे ये कहा गया कि जब
बच्चा जैसे फर्स्ट क्लास में है तो उसका माइंड किस चीज़ों में ज़्यादा लगता है, उसके हिसाब से उसको शिक्षा दी जाएगी। फिर जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होगा तब उसका दिमाग किस चीज़ों में लगता है तो उसके हिसाब से उसको शिक्षा दी जाएगी। फिर धीरे धीरे बच्चे चीज़ों को करके सीखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से उनके दिमाग में बैठेगा। तब वहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल चीज़ें लाई। तो इस तरीके से एज वाइज एज जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा वैसे वैसे ऐसा हमें करिकुलम बनाना है जिस तरीके से जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सके। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हम पनिशमेंट जो जैसे पुराने ज़माने में पनिशमेंट मिलती थी और भी कई टाइम तक पनिशमेंट मिलती है तो पनिशमेंट को हम हटाएंगे, ठीक है। और रिटेंशन वाली जो पॉलिसी है उसको हम लागू करेंगे, यानी कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। प्लस बच्चों को हम वेकेशन भी देंगे, यानी छुट्टियां भी प्रोवाइड करवाएंगे उनके अकॉर्डिंग। यानी अब जून जुलाई ये मई से जून तक की छुट्टियां क्यों होती हैं, क्योंकि इस दौरान जो मौसम होता है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। क्योंकि जो सन रेज होती हैं वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बच्चों का ध्यान रखते हुए यहाँ पे समर वेकेशंस चालू हुई और प्लस इसी के साथ जो विंटर वेकेशंस हैं वो भी चालू हुई। तो जहाँ जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है जो बच्चों को नुकसानदेह कर सकता है, इसलिए यहाँ पे बच्चों का ध्यान रखते हुए वेकेशंस को भी शुरू किया गया, उनके अकॉर्डिंग करिकुलम को भी बनाया गया, उनके अकॉर्डिंग ही करिकुलम में ऐसी चीज़ें शामिल की गई जो बच्चे ईज़िली कैच कर सकें। जैसे छोटा बच्चा है तो वो अगर हम उसको गाने सुनाएंगे या गाने के थ्रू हम लोग उसको चीज़ें सुनाएंगे तो वो जल्दी कैच करेगा। इसीलिए यहाँ पे छोटे बच्चों में प्री प्राइमरी सेक्शंस में राइम्स के थ्रू बच्चों को पोएम है, ABCD है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिर धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं तो प्रैक्टिकल चीज़ें उनको सिखाई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे चाइल्ड अप्रोच को एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपकी जो बात कही जा रही है वो है स्कूल फैसिलिटी की। तो स्कूल फैसिलिटी क्या कहते हैं कि प्रोविजन विल बी मेड ऑफ एसेंशियल फैसिलिटीज इन प्राइमरी स्कूल्स। द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड विल बी enlarged to provide 3 reasonable large rooms that are usable in all weather, and blackboard maps, charts, toys, other necessary learning aids, and school library. At least 3 teachers should work in every school. The number of increasing as early as possible to 1 teacher per class. At least 50% of teachers recruited in future should be women. The Operation Blackboard will be extended to upper primary stage also, and construction of school buildings will be priority charge to JRY funds। यानी बेसिकली JRY funds क्या हो गया, जो आपका जवाहर रूरल योजना थी, ठीक है, सॉरी जवाहर रोजगार योजना थी, उस वहाँ से ये लोग फंड्स लेते थे। तो बेसिकली यहाँ पे स्कूल फैसिलिटीज़ की बात कही गई है कि स्कूल फैसिलिटीज़ में हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, राइट फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी टू टॉयलेट्स टू क्लासरूम टू ब्लैक बोर्ड्स एंड अदर टीचिंग एड्स। सारी जितने भी टीचिंग एड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग पढ़ाई को इजी कर सकते हैं बच्चों को समझाने में, वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड होंगी। और प्लस इन्होंने कहा कि हर क्लास में एक टीचर का रिक्रूटमेंट होना ही होना है। अब जैसे जैसे बच्चों का एडमिशन बढ़ेगा उसी हिसाब से हम रेशियो बनाकर टीचर की भी रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है। फिर इन्होंने बात कही कि ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करवाने के लिए हम JRY यानी जवाहर रोजगार योजना से हम लोग फंड्स लेंगे, ठीक है। फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात कही, यानी अनौपचारिक शिक्षा के बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। द नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम मेंट फॉर स्कूल ड्रॉप आउट्स, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम हैबिटेशंस विदाउट स्कूल्स, वर्किंग चिल्ड्रन एंड गर्ल्स हु कैन नॉट अटेंड होल डे स्कूल will be strengthened and enlarged।
यानी बेसिकली नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऐसे बच्चों के लिए बनाई गई जो ड्रॉप आउट हैं, यानी किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को बीच में उन्होंने छोड़ दिया है, उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन बनाई गई। और ऐसे बच्चों के लिए बनाई गई जो वर्क करते हैं, ठीक है, किसी कारणवश हो सकता है उनकी मजबूरी हो जिसके वजह से वो वर्क करते हैं। और ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने घर के कारण, घर के काम के कारण पूरे दिन का स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी ये अनौपचारिक शिक्षा बनाई गई जिससे कि ऐसे बच्चे भी शिक्षा को ग्रहण कर सकें। फिर उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी एड्स विल बी यूज टू इम्प्रूव द लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ NFE सेंटर्स। Talented and dedicated young men and women from the local community will be chosen to serve as instructors. अब जब यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा की बात कही जा रही है तो इन्होंने कहा कि हम टीचर्स को जो रिक्रूट करेंगे वो हम यूथ को रिक्रूट करेंगे और प्लस ऐसे बच्चों को रिक्रूट करेंगे, ऐसे बच्चों को टीचर बनाएंगे जो टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अवगत हों, यानी कि उनको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आना चाहिए और जिससे कि जो भी उनको काम दिया जाए वो पूरे तरीके से वो कर सकें और बच्चों को और कह लीजिए और क्रिएटिविटी के तहत बच्चों को पढ़ाई करवा सकें, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि इफेक्टिव स्टेप्स विल बी टेकन टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ फॉर द करिकुलम ऑन द लाइन्स of the national core curriculum but based on the needs of the learners and related to the local environment. Learning material of high quality will be developed and provided free of charge to all people. तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया कि हम पढ़ाई ऐसी प्रोवाइड करवाएंगे जो पर्टिकुलर एरिया के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। इन्वायरमेंट का भी हम ध्यान रखेंगे कि कहीं भी किसी भी हम लोग अगर मान लीजिए रूरल एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ का क्या माहौल है, ठीक है, क्या इन्वायरमेंट है वहाँ का, किस तरीके से लोग शिक्षा को लेते हैं, उनके लिए शिक्षा क्या है, इस तरीके से पहले लोगों की मेंटालिटी को हमें समझना होगा, तब हम वहाँ पे अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा पाएंगे, ठीक है। The government will take over all responsibility for this vital sector. Voluntary agencies and Panchayati Raj institutions will take much of the responsibility of running NPE program through the provision of funds of these agencies will be adequate and timely. तो बेसिकली अगर हमें गांव में शिक्षा को एक्सटेंड करना है तो हमें क्या करना होगा, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है यानी जो पंचायती राज है उसको भी साथ में मिलाना होगा ताकि वो अपने गांव तक ये सारी फैसिलिटीज़ कर सकें। तो बेसिकली गवर्नमेंट को पंचायती राज के साथ भी मिलकर काम करना होगा, ठीक है, तभी ये शिक्षा वहाँ तक पहुँच पाएगी। फिर उसके बाद ये कहते हैं द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल गिव द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन ड्रॉपिंग आउट। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे जो ये कह रहे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 बन रही है वो कहीं ना कहीं ऐसे फोकस करेगी जो बच्चे बीच में अपनी शिक्षा छोड़ चुके हैं, ड्रॉप आउट हो चुके हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम रही है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि शिक्षा की तरफ वो कैसे अपने आप को बढ़ाएं, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें साथ साथ नॉन फॉर्मल एजुकेशन को भी साथ में लेके चलना होगा, पंचायती राज को भी साथ में लेके चलना होगा और अदर इंस्टीट्यूट को भी साथ में लेके चलना होगा जिससे कि हम बड़े एक्सटेंट में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकें। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन की बात कही गई है। अभी तक हम लोग किस पे बात कर रहे थे, एलिमेंट्री एजुकेशन की, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन की। तो सेकेंडरी एजुकेशन क्या कहता है, सेकेंडरी एजुकेशन बिगिंस टू एक्सपोज स्टूडेंट्स टू differentiate roles of sciences and humanities and social science. This is also an appropriate stage to provide children with a severe history and national perspective of and give them opportunity to understand their constitutional duties and rights as citizen. अब सेकेंडरी एजुकेशन क्या होता है कि सेकेंडरी एजुकेशन मतलब हो गया कि इस एजुकेशन में बच्चे ऐसे
ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं जब उनकी बुद्धि थोड़ी सी डेवलप हो जाती है, वो सोचने समझने की शक्ति उनकी बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पे तब हिस्ट्री है, सोशल साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, सिविक्स है, ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, जैसे 6th क्लास से आपके ये सारे सब्जेक्ट इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो ये क्यों किया जाता है? ज्योग्राफी है, ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो दुनिया है उससे अवगत करवाया जाता है बच्चों को। ठीक है, जो दुनिया है उससे अवगत करवाया जाता है बच्चों को। जो हमारे हिस्ट्री में चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में बताया जाता है, जो उनके अधिकार हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो ये जो एज होती है, जो 6th क्लास में जो बच्चों की एज होती है, वो अगर वहीं से हम लोग बच्चों को उनके अधिकार और उनके पास्ट और पूरी सारी चीज़ें ओवरऑल अपने मतलब दुनिया के बारे में बताएंगे, तो वो बच्चे जल्दी और अच्छे तरीके से समझना शुरू करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन में ये सारे सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व कर लिया जाता है। फिर ये कहते हैं इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड that children with special talent or aptitude should be provided opportunity to proceed at a faster pace by making good quality education available to them irrespective of their capacity to pay for it। तो यहाँ पे एक फैसिलिटी और बच्चों को प्रोवाइड करवाई गई जो कि है वोकेशनल, कह लीजिए वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड, या ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जिनका कैचिंग पावर बहुत अच्छा है, जो बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट हैं, ब्राइट स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि वो अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं, कोई चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम उनको वो प्लेटफॉर्म करवाएंगे। और जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैथ्स में बहुत तेज़ होते हैं, तो हम उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, कंपटीशन करवाएंगे और उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि उनके लिए वो फ़ायदा कर सकें। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बात कहते हैं नवोदय विद्यालय की, अब बात कह रहे हैं कि pace setting national residential schools Navodaya Vidyalaya intended to serve this purpose have been established in most parts of the country on a given pattern but with full scope for innovation and experimentation। तो अब यहाँ पे ये कहा गया कि ठीक है, कुछ अभी तक सिर्फ कुछ शहरों में नवोदय विद्यालय इस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन हमें पूरी कंट्री में उसको इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि नवोदय विद्यालय इज़ अ रेसिडेंशियल स्कूल और ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे बच्चे रहकर और सारी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, यानी हर तरह की फैसिलिटी उनको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। इसलिए ये नवोदय जो विद्यालय है उसको हर जगह खोलने की आवश्यकता है। फिर ये वोकलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टमैटिक, well planned and rigorously implemented programs of vocational education is crucial in the proposed educational reorganization. These elements are meant to develop a healthy attitude amongst students towards work and life, to enhance individual employability, to reduce the mismatch between the demand and supply of suited मैन पावर। तो बेसिकली वोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले भी हमने आपको बताया है, इट इज़ काइंड ऑफ स्पेशल कोर्स। ठीक है, आप ऐसा कोर्स जो आपकी हॉबी हो उससे रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हैं, या कोई ऐसा कोर्स जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे सके जल्दी। ठीक है, तो ऐसे कोर्स को भी इन्होंने कहा कि हम इस पे भी फोकस करेंगे, तो जिससे कि बच्चे जो है थोड़ी सी पढ़ाई करके, अगर मान लीजिए कि वो 12th के बाद अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर देते हैं, तो उनके पास एक ऐसा कोर्स होना चाहिए जिससे कि वो 12th के बाद भी मतलब थोड़ा सा कुछ अर्न करके अपनी लाइफ को एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये सब कुछ था आपका वोकलाइजेशन के ऊपर। कल हम लोग हायर एजुकेशन पढ़ेंगे और प्लस जो पार्ट नेक्स्ट है यानी 6th पार्ट वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपका बस इतना ही था। सारे पॉइंट्स आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड
we will meet tomorrow again. Till then, good, take care, and thank you, class.